Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 2 of history, that is kings, farmers, and towns. And basically, in this chapter, we have studied about the major ruling elites and the kind of empire that India witnessed during the 600 BCE to 600 CE. Okay, so we have basically done the political part and we were on kind of life and kind of perceptions that the common people had. And the things that we have done till our previous classes was that we know that there were kind of several social differences that did exist during the time period about which we are talking about. एंड यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल कैटेगराइजेशंस पढ़ी थी in our previous class, that is regarding the terms like Velalar, Uzhavar and Adimai. These were the various terms which were used for landowners, plowmen and slaves respectively. So कैसे क्या चीजें society divided थी, that is what we have already seen. And when we did study these topics, we did understand कि resource का जो possession है, that was an important thing. Okay, so अगर हम resources में भी बात करें तो सबसे important resource जो हमारे हो जाएंगे इस time period के, that will be land. So जब हम लैंड की बात करते हैं कि लैंड was one of the most important thing about which we should know, because this was something which somewhere has given lot of power to various sections of the society. Now हमें ये जो लैंड है इससे related information जो है वो मिलती है through land grants, about which we started to discuss in our previous class. बेसिकली ये होता क्या था, ये लैंड ग्रांट्स होती थी विच वाज गिवन बाय द मे बी द किंग और द वेरी रिच पीपल टू some other people regarding the, you can say, की possession of the land. तो जनरली ये जो लैंड है ये किसको दिया जाता था? जनरली ये जो लैंड है ये दिया जाता था to the religious centers, religious institutions, and along with that obviously to the Brahmins as well. So इससे related अपने पास जितने भी evidences हैं इस time period के regarding the lands have basically we have found it either on stone plates or copper plates. तो ज्यादा जो often हमें मिलते हैं those are our copper plates. एंड देन उसके बाद कॉपर प्लेट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, हमें बहुत कुछ पता चल जाता है इस टाइम पीरियड के बारे में थ्रू दीज कॉपर प्लेट्स. तो बेसिकली अगर हम इनसे रिलेटेड बात करें तो हम यही देखेंगे कि जनरली जो लैंड का पोजेशन था वो किसका होता था? इट वाज ऑफ मैन. बट यहाँ पे क्या है, अपने पास कुछ एक्सेप्शंस है इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड. और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास एविडेंस है अबाउट प्रभावती गुप्ता. जो प्रभावती गुप्ता है, एज वी हैव ऑलरेडी had a kind of discussion on who she was. She was basically the daughter of one of the most important rulers of the Gupta Empire, that is Chandragupta II. है ना, चंद्रगुप्त II की डॉटर थी. उनकी मैरिज हुई थी एक रूलिंग अगेन पावरफुल रूलिंग फैमिली में जो थे वाकाटाकास, और ये डेक्कन में बहुत पावरफुल थे. नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस एंड यू कैन से बिकॉज द कंडीशन केम इन विच जो इनके नेक्स्ट जनरेशन थे, ऑफस्प्रिंग्स थे, माइनर ही थे एंड द किंग वाज नॉट देयर. सो ऑब्वियसली ये रूल करने का किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी? ऑन द क्वीन. एंड हु वाज द क्वीन है? प्रभावती. सो हमें इसके बारे में रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन है that she did own a lot of lands because she was the queen, because she was ruling somewhere on, you can say, behalf of her son, because husband was not there because of certain fight and all. So husband
नहीं था, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो है उनके सन की वो आ जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनके ऊपर ही जो सन है वही नेक्स्ट मोनार्क बनेगा, किंग बनेगा. But because they were minor, the kids, so she took over the power and she did rule in a very, very nice manner. So it is mentioned many times in the text and in many of these kind of plays that she did grant land to many people. Okay, and why did she do it? Basically जो भी responsibility होती है, जिस जिस reason से land grants दिए जाते थे, वही reasons थे. But यहाँ पे हमें इस जैसे ऐसा कोई कॉपर प्लेट या ऐसा एविडेंस मिला, तो इससे हमें क्या चीज पता चलती है कि हाँ, this particular queen, though obviously it was not acceptable generally in the society कि women had the possession over the land, but she did have a possession. That is why she granted it to the Brahmins and the religious institutions. ठीक है, तो या तो हम ये भी बोल सकते हैं this is just one of a exception that we can talk about. ओके, सो अब हम ये अपने को लैंड ग्रांट से रिलेटेड पता चल गया कि लैंड ग्रांट जो है वो रियली इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो लैंड का पोजेशन है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, एंड इसी से हम देखेंगे कि किसी भी राजा जो है उसके पावर के बारे में हम पता कर सकते हैं, और मतलब समवेयर एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो भी इसी पे डिपेंड करती है. So ये तो हो गया about our land grants and the evidences that we get regarding our land grants. अब हम इसी चीज को अगर आगे देखें, inscriptions also give us some other idea about the rural population. ठीक है, कुछ inscriptions जो हैं वो हमें ये भी आइडिया देते हैं about you can say जो रूरल एरियाज है, क्योंकि हम यहाँ पे रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन थी वो कैसे रहती थी, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, इन सब चीजों के बारे में भी हमें पता चल जाता. ओके, तो चाहे वो ब्राह्मण्स की बात हो, चाहे वो हमारे पीजेंट्स की बात हो, चाहे और किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि there are lot many things that are directly or indirectly mentioned in the in other sources that we obtain, and again we can interpret few things. So यहाँ पे सबके somewhere responsibilities लिखी हुई होती थी. Responsibility in terms की सब क्या ओ करते हैं किंग को, मतलब सब अपने जो प्रोड्यूस है उसका क्या पार्ट जो है वो किंग को देंगे या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को देंगे. ठीक है, अगेन व्हाट एम आई वांटिंग यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो हो सकता है राजा की साइड से लिखा हुआ हो इंस्क्रिप्शन, मतलब उनके जो उनके अंडर जो लोग काम करते थे, बट हम इसके थ्रू क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन मैन, और स्पेशली अगर ये रूरल इंडिया से रिलेटेड बात है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो ब्राह्मण्स और पेजेंट्स थे या कोई भी सेक्शन थे, उनको क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनसे किंग की, कि किंग को वो अपने प्रोड्यूस का कितना शेयर दे रहे हैं, या फिर सीधा सीधा किंग को नहीं दे रहे तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे दे रहे हैं. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन क्लियरली लिखा हुआ होता है कि जो भी आपके विलेज के नए हेड होते हैं उनको आपको उनको टोटली ओबे करना होता है. आपको उनको सारे के सारे ड्यूज, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ड्यूटीज है, वो आपको उनको देने ही पड़ेगी. ठीक है, land grants such as this one has been found in several parts of the country. There were regional variation in the size of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land. अब देखो, इसमें हमें कुछ और चीजें क्या समझने की जरूरत है कि जो लैंड ग्रांट्स है ऑब्वियसली इंडिया के हर पार्ट में, हर जो एम्पायर बोलेंगे वो लोग एक्चुअली में लैंड ग्रांट देते थे, either to their officers or maybe to the religious institution or maybe to the brahmins. तो बस ये डिफरेंस जरूर था कि कहीं कहीं पे स्मॉल प्लॉट देते थे किसी को, किसी एरिया में वास्ट स्ट्रेचेस दे देते थे, मे बी कल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड. तो राइट वर आल्सो गिवन टू डोनीज. नाउ डोनीज का मतलब क्या है, जिनको वो ग्रांट दिए गए हैं, तो उनके उस लैंड के ऊपर क्या क्या राइट है ये भी स्पेसिफाइड थे.
कि वो उस लैंड से, अगर सपोज कल्टिवेबल लैंड है या ऐसा कुछ है, तो उससे क्या कर सकते हैं, वो कहीं पे इतने एरिया का कंट्रोल है तो टैक्स कलेक्ट करेंगे यहाँ से, या फिर वो पूरा लैंड उनके अंडर है या वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनके अंदर है, वॉट एवर इट इज, वॉज क्लियरली स्टेटेड ऑन दीज लैंड ग्रांट्स एंड यू कैन से जो कॉपर प्लेट्स थी उनपे इम्पैक्ट भी होता था लैंड ग्रांट। बेसिकली हिस्टोरियंस इस चीज पे बहुत डिबेट करते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो है ना, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ तो बोलते हैं कि ये एक तरीके से है ना, जो राजा होते थे उनकी स्ट्रैटेजीज होती, क्या स्ट्रैटेजी, कि वो एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करें टू द न्यू एरिया। हाउ कम दे एक्चुअली ग्रांटेड मेनी टाइम्स द अनकल्टिवेटेड लैंड। अब जब अनकल्टिवेटेड लैंड ग्रांट में दिए हैं, तो जिसको वो लैंड मिले हैं वो क्या करेगा कि उस एरिया से प्रोडक्शन कैसे करे, तो वहां पे वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट करवा देगा। वेदर अगर ब्राह्मण या ऐसे कोई है तो वो ऑब्वियसली खुद नहीं करेंगे, किसी और से करवा लेंगे, चाहे वो हायर्ड लेबर हो चाहे वो पेजेंट हो। बट इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर है वो न्यू एरियाज में एक्सटेंड हो रहा है। ये तो है एक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हिस्टोरियंस का। बाकी जो कुछ हिस्टोरियंस है वो ये सजेस्ट करते हैं कि मे बी जो लैंड ग्रांट्स अगर ज्यादा दिए जाते हैं ना, तो समवेयर ये एक इंडिकेशन है कि जो राजा का पॉलिटिकल पावर है ना, वो लूज हो रहा है। तभी तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लैंड ग्रांट दे रहा है। एंड हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो किंग है उसका कंट्रोल कम हो रहा है ओवर दी सामंतास। एंड अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं या ये लोग ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो इनको अपने पास हम कैसे मिलाएं। इसका एक तरीका है कि इनको कुछ कुछ हम लोग मतलब गिफ्ट जैसे या ग्रांट्स जैसे देते रहे, तो सबसे अच्छा तरीका है लैंड ग्रांट देते। तो ये हमसे क्या रहेंगे, थोड़े से सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और हमारे अगेंस्ट क्या करेंगे, कुछ प्रोटेस्ट या कॉन्स्पिरेसी जैसा नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज अ काइंड ऑफ डिबेट दैट इज स्टिल गोइंग ऑन बिटवीन द किंग्स, यानी कुछ तो बिटवीन द हिस्टोरियंस, यानी फ्यू ऑफ द हिस्टोरियंस आर सेइंग ये सिर्फ इसलिए करते थे ताकि ज्यादा एरिया इनके अंडर आए, ज्यादा एरिया पे एग्रीकल्चर हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, और ऑब्वियसली जो कंट्री और टैक्सेस भी ऑब्वियसली थोड़े और ज्यादा मिलेंगे उससे, और एरिया ज्यादा एग्रीकल्चर में आएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो प्रोस्पेरिटी होगी। दूसरे बोल रहे हैं इसके पीछे हिडन मीनिंग है कि राजा जो है वो वीक है, तभी तो वो क्या कर रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से अपीज करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अगेंस्ट ना चले जाए। इनको हम लोग क्या करते हैं, लैंड देते रहते हैं ताकि ये हमारी साइड पे रहे और अपने आप इंडिपेंडेंट होने या पावरफुल, ज्यादा पावर के लिए एक्स्ट्रा कुछ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश ना करें। ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि जो ये किंग्स हैं वो अपने आप को बेसिकली सुपरमैन की तरह डिपिक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो समवेयर उनको लग रहा है कि हम जो है ना पावर लूज कर रहे हैं, बट एटलीस्ट मतलब वी शुड रिमेन पावरफुल, मतलब थ्योरेटिकली, या फिर मतलब देखने में तो ऐसा लगे, लोग ये चीज माने, अज्यूम करे कि हाँ राजा पावरफुल है, क्योंकि पावरफुल है तभी तो वो लोगों को लैंड ग्रांट्स दे रहा है। Somewhere to show themselves is more powerful, though maybe they may be losing their control slowly and gradually, but to present to people that yes, I am powerful, I have lot of power and control over my area, so I am actually gifting lands to various people. Okay, ये तो हो गया about डिबेट की जो लैंड ग्रांट्स है उनका सिग्निफिकेंस क्या है और हिस्टोरियन उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें सोचते हैं। ओके, इसके अलावा जो लैंड ग्रांट्स हैं वो हमें और बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड कि ये हमें एक टाइप से रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट,
यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और जो लोग मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, उनके और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बिकॉज हमें पता है बहुत बार क्या होता था कि जो कॉमन पीपल है ना, they were often beyond the reach of officials और सामंतास। बहुत बार क्या होता है, जो मेन एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो तो ठीक है, उनका क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको इतना टैक्सेस देना है, या तो सामंता को देना है, या इसको देना है, उसको देना है, वॉट एवर इट वाज। बट ये तो रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट किंग को दे रहे हैं, सामंतास को दे रहे हैं, क्या उनका कंट्रोल है कितने एरिया पे। But there was always one section that was beyond the reach of the official. What do we mean by that? Basically, हम ये देखेंगे कि बहुत एक बड़ा सेक्शन, मतलब not in comparison to the whole of the you can say population, but अगर हम देखें एक सेक्शन ऐसा था जो सामंताज और ऑफिशियल्स के कंट्रोल में नहीं था, उनके रीच में ही नहीं था। ये कौन थे? ये थे पेस्टोरलिस्ट, फिशर फॉक, हंटर गैदरर्स। इसके अलावा कुछ मूव होने वाले जो आर्टिजन्स है या जो टेम्पररी एक जगह पे रहते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ये ऐसे लोग थे जिनके डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास है ही नहीं, उनके लाइफ्स के, उनके ट्रांजैक्शंस के। तो जब हमारे पास उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड कि जरूर इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो उस टाइम पीरियड के ऑफिशियल्स और सामंतास के पास भी नहीं होंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये भी लिखा होता कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, though they were expected to give certain kind of gifts and taxes kind of things to the kings, but ये प्रॉपरली इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है। बिकॉज समवेयर एक तो ये लोग जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वाले हैं, या हम नोमैड्स बोल देते हैं, मोबाइल आर्टिजन्स बोले, हंटर गैदरर्स बोले, ये लोग परमानेंटली एक जगह पे नहीं रहते थे, मूव करते रहते थे। इनकी फिक्स्ड एरिया जो है वो सामंताज और ऑफिशियल्स को पता ही नहीं होती होंगी। ओके, और फिशर फॉक भाई उनकी कितनी प्रोडक्ट, उनकी कितनी, मतलब उन्होंने कितने सेल किया है, क्या उनकी इनकम है, उनके अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हाउ विल दे कलेक्ट दीज रिकॉर्ड्स एंड हाउ विल थिंग्स बी मेंशन। ओके, सो लैंड ग्रांट्स हमें ये देख सकते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं इससे, लैंड ग्रांट से। बट एक सेक्शन है जिसके बारे में हमारे पास कंप्लीट या मतलब बहुत बड़े तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है, because these were the group which were actually not living certain kind of permanent you can say settled life, या somewhere they were always on a move or maybe lived in forest या पेस्टोरलिस्ट थे। तो प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स इनके सामंताज, ऑफिशियल्स, किंग्स के पास ही नहीं होंगे इन रिगार्डिंग देयर इनकम एंड द प्रोडक्शन। so how will they basically write about that? Okay, so now this is what is something related to our land. Okay, now as we always go through the boxes that are given in our book, we will again go through one of the box that is given on your page number 41. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। About I think Harshcharita, Harshvardhan we have already studied. This is one box again given on your page number 40 as well regarding Harshcharita. Now in his biography of Harshvardhan, who was the ruler of Kannauj, and इनके जो कोर्ट पोएट है बाणभट्टा, उन्होंने इनके बारे में लिखा था। ठीक है, एंड बेसिकली इन्होंने लिखा था लाइफ ऑफ सेटलमेंट विंध्या फॉरेस्ट के आसपास जो है। तो इससे रिलेटेड इन्होंने ये लिखा था कि द आउटस्कर्ट्स बीइंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, पार्सल्स ऑफ राइस लैंड, थ्रेशिंग ग्राउंड्स, एरेबल लैंड्स, इनके लिए these were being apportioned by small farmers
और ये लोग नॉर्मल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर करते थे एंड स्पार्सली स्कैटर्ड फील्ड्स पे ये लोग एग्रीकल्चर करते थे वेयर समवेयर देयर वर ग्रासेस एंड यू कैन से जो सॉइल थी वो भी स्टिफ थी. तो दिस वाज द एरिया वेयर सर्टेन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन. ठीक है, रिलेटिंग टू राइस. तो हम देख सकते हैं दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया विंध्यास के अराउंड. तो यहाँ पे क्या मेंशन है, अगेन there are various kind of mention of these kind of agriculture that was performed by the common people, and this helps us to understand about the kind of life that these people used to live. तो यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो ये बोल रहे हैं कि आउटस्कर्ट्स जो है उसमें जनरली राइस लैंड जैसे एरिया होते थे, थ्रैशिंग ग्राउंड होते थे, एरेबल लैंड में स्मॉल फार्मर्स काम करते थे, स्पेड कल्चर यानी स्पेड एग्रीकल्चर करते थे, और डिफिकल्टी जो होती थी उनको प्लाउइंग से रिलेटेड, क्योंकि कवर्ड होते थे ग्रास से, और फ्यू क्लियर स्पेसेस ही होती थी, और जो सॉइल भी थी ना वो भी बहुत स्टिफ थी, ब्लैक आयरन से भरी हुई, मतलब इट वाज समथिंग यू कैन से समवॉट लाइक ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल थी, तो उसको टिल करना बहुत मुश्किल होता था यहाँ के लोगों के. Then ये बोल रहे हैं there were people moving along the bundles of bark, countless sack of plucked flowers, loads of loads of flax. Flax क्या होता है, जनरली लिनन जिससे बनता है उस टाइप का जो मटेरियल है वो. Then quantities of honey, peacock tail, feathers, wax, logs, grasses. मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड भी क्या होती थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी. ओके. Then basically village wives hastened their route to neighboring villages for basically selling these things and bearing on their head baskets filled with sometimes gathered forest fruits. तो यानी हम इस यहाँ का जो इस टाइम पीरियड का देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी होता था और फॉरेस्ट से लोग चीजें कलेक्ट करते थे टू सेल इन द मार्केट. ओके. And about this Harshvardhan, there are many other written documents that we have basically hand over. और इसमें ना जनरली बाणभट्ट ने अगेन जो हर्षवर्धन है उनके बारे में बहुत कुछ मतलब एग्जैजरेट करके, एंड ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट रूलर, पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उनकी तारीफ में और उनके रिलेटिंग टू हाउ पावरफुल ही वाज, ये सारी चीजें मेंशन की है. और बाद में उनकी जो फाइट थी विद द डिफरेंट रूलर्स, उनसे रिलेटेड भी काफी कुछ मेंशन है. तो मतलब डिफरेंट रूलर्स आर मेंशनिंग कि उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया, सो दिस वाज सच अ बिग काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसे करके बहुत सारे एविडेंसेस है, पर हमने जो ये बॉक्स पढ़ा है अभी which is given in on your page number 40 in your book, this is about the life of a small village. ठीक है, तो यानी कि हर्षचरिता में हर्षवर्धन की बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि कॉमन एक स्मॉल विलेज में लोग जनरली कैसे रहते. तो ऐसे करके हमें कुछ कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं. उसी तरीके से हम एक और बॉक्स पढ़ लेते हैं अबाउट प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दनगुना. नाउ ये जो है ये बेसिकली प्रभावती गुप्ता की इंस्क्रिप्शन है. जो प्रभावती गुप्ता है इन्होंने, एज वी सेड कि शी हैड द कंट्रोल ओवर दैट एरिया, जो डेक्कन वाला एरिया है जो वाकाटाकास का था, उस वाले एरिया पे कंट्रोल था. तो शी कमांड्स द गृह कुटुम्बिनास. कुटुम्बिनास का मतलब बेसिकली हाउस होल्डर्स जैसे, ग्राम कुटुम्बिनास मतलब हाउस होल्ड या पेजेंट जो विलेज में रह रहे हैं, ब्राह्मण्स और बाकी जितने भी इस विलेज दनगुन में रह रहे हैं, उनको प्रभावती ने क्या कमांड किया है वो लिखा हुआ है. Be it be known to you that on the earth 12 मतलब lunar day of the bright, ये जो अपने डेटिंग होती है हिंदी के हिसाब से, कार्तिका वाले टाइम पे, we have in order to increase our religious merit donated this village with pouring out of water to Acharya. You should obey all his commands. तो ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है. इस टाइम पीरियड ये जो कार्तिका का और लूनर डे वाला है, इसमें हमें अपने रिलीजियस उसको बढ़ाना है. तो रिलीजियस
मेरिट हम कैसे बढ़ाएंगे? बाय डोनेटिंग थिंग्स टू द रिलीजियस हेड, जो हमारे आचार्य हैं, और इसीलिए आप सबको क्या करना है? उनकी बातों को ओबे करना है। ओके, देन basically in continuation they are saying we confer on the following exemptions typically of an agrahara. agrahara या हम जैसे, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब होता है लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण, and not only land grant but then he was also exempted from paying land revenue and other dues to king. यानी जो ब्राह्मण है उनको लैंड ग्रांट तो मिला है, अब उनको ना तो लैंड रेवेन्यू देना है उससे रिलेटेड, ना और किसी टाइप के ड्यूज या टैक्सेस देने हैं राजा को। एंड ऊपर से दे वर ऑफन आल्सो गिवन द राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, यानी लोकल पीपल से आप क्या कर सकते हो? टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अपने को रिलीजियस डोनेशन ज्यादा करनी चाहिए, अपने जो ब्राह्मण्स हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट जैसे देनी चाहिए, इसीलिए हम उनको एग्जेम्पशंस दे रहे हैं आगरा वाले एरिया में। एंड बेसिकली इस एरिया में ना सोल्जर्स एंटर करेंगे, ना पुलिसमैन एंटर करेंगे, और मतलब इनको बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी थी। एंड समवेयर ये जो हम बोलेंगे, ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज समथिंग अगेन टेलिंग अस अबाउट द लैंड ग्रांट। ओके, एंड काइंड ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज that were given generally to Brahmins, ठीक है। एंड एज आई सेड बहुत सारी इसमें चीजें लिखी है, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस लैंड ग्रांट्स बट और जितनी भी उनके पास स्पेशल चीजें हैं कि क्या क्या चीजें उनको डोनेट करनी चाहिए, क्या क्या चीज जो है वो उनको हमारी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको कोई टैक्सेस नहीं देने, बेसिकली उनको गिफ्ट्स देने हैं, उनके एरिया पे कोई पुलिसमैन या सोल्जर्स जो हैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि some kind of you can say control over their area, ऐसा कुछ नहीं होगा। and only उनको there will be things that will be granted to them, ठीक है। so again ये जितने भी अपने मेंशन हैं in the boxes are basically somehow directly और indirectly telling us कि ऐसे evidences होते हैं, और फिर हम उनसे क्या finally interpret करते हैं। okay, so this is about the kind of life that people had in the rural areas. Okay, the next topic that we will cover will be the kind of life that the people were leading in urban areas, ठीक है। urban areas में भी तो obviously बहुत सारी population रहती थी। हम generally ऐसा नहीं है कि सिर्फ kings की बात या सिर्फ elite class की बात जो हमने पहले कर ली थी, उतने लोग ही रहते थे urban areas में। Urban areas again had lot of craftsperson, lot of other kind of people who used to live there. So what was the kind of life that these people used to lead? That is what is given in our book as our next topic. Okay, तो इसमें हम basically about the important cities पढ़ेंगे, like पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, उज्जैनी के बारे में पढ़ेंगे, मथुरा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई एरिया कमर्शियली इम्पोर्टेंट थी, या कोई एरिया कल्चरली इम्पोर्टेंट थी, या पॉलिटिकल वाइज तो इनिशियली इम्पोर्टेंट थी। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट कि जो किंग्स और जो रूलिंग एलिट्स है वो किस तरीके से रहते थे, फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, हमें एक्सकवेशन मिली है। एंड यहाँ पे हम है ना कुछ चीजें हमें ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि ये ऐसी एरियाज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये अभी प्रेजेंट डे में भी बहुत ज्यादा इनहैबिटेड है, मतलब पॉपुलेशन बहुत रहती है यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसी जगहों से एक्सकवेशन करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां रह रही है, तो उनको उस पोजीशन से हटाना, उनको वहां से हटाना ओनली फॉर बेसिकली एक्सकवेशन becomes a kind of, you can say, problematic situation. So still we are trying, and whatever sources we get regarding that time period from those areas, we try to understand, or you can say take an insight, interpret about that time period, ठीक है। तो we will study about the various towns and cities and the life of people living there in our next class.
So whatever we have done today, if you have any doubt relating to the topic, come back with your problems and we'll sort out the problem. We'll discuss and sort it out. Okay. So this is it for today. Now we'll meet in the next class.